Hello and very good morning, my dear students. How are you today? So today we are going to start next chapter, and our next chapter is electromagnetic inductions. Okay, we are now going to start unit number 4, first chapter, electromagnetic induction. So our first topic is magnetic flux. What is magnetic field flux? Magnetic flux होता है बेटे magnetic field lines crossing the surface per unit area. ओके सो उसका जो एरिया होगा सरफेस का उसमें से कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगे दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. लेट्स सी द डेफिनेशन. इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस नॉर्मली. तो जो सरफेस का नॉर्मल होगा उसको जितना वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगे दैट वैल्यू विल गिव यू द फ्लक्स. ओके एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 5. 5 के साथ हम इसको क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज लेट्स सी दिस वन पार्ट diagrammatically also. If this is a surface area we have a ring. Okay, इस रिंग का surface area is normally along this one direction and magnetic field lines also crossing along this one directions. If this one directions both are normal to each others, okay, so it is dot products. It is dot product and dot product of flux is equal to magnetic field lines into area. This is the mathematical expressions of the magnetic flux. तो magnetic flux क्या होगा? It is the dot product of magnetic field lines, magnetic field and surface area. Okay, so this is the definitions part of magnetic flux. Next part is if it is dot product. But if it is dot product, we can change it into a cos theta. So whatsoever this there is angle. तो देखिए अगर ये सरफेस इसका नॉर्मल इस तरफ है, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट ना होके ऐसे मूव करें बेटे देखिए, if magnetic field lines crossing like this one, then this is the magnetic field lines and this is the surface area normal and this is angle theta. In such a case, whenever there is small angle between magnetic field and the surface area, then theta, then such a case we can use this one formula, that is BA cos theta. Okay, if the angle theta is given to us and we have to find the value of magnetic flux and area and magnetic field value we have given, then we can easily find the value of flux. Okay, so this is the second case when we have a cos theta, whenever there is small angle theta between area and magnetic field. Okay, next is magnetic flux is positive when it is positive and when it is negative. Magnetic flux is positive whenever surface is upward. Okay, surface is upward and magnetic field is also along the same direction. When it is upward, then we said it is positive. But whenever magnetic field lines moving downward and area is also downward, so in such a cases that we can take it as magnetic flux negative. Why? Because of this. If it's x, this is y axis, this is negative y. Clear? So अगर हम 0 से ऊपर अगर vertical लेंगे then it is taken as positive. If it is downward or in opposite direction then we will take it as negative. So that is why we have positive and negative magnetic flux. Clear बेटे? So this is the simple form what is magnetic flux. अब इसी flux को हम आगे further भी use करेंगे. Okay. SI unit of magnetic flux is Weber. याद रखिए SI unit of magnetic flux is a Weber. तो वेबर को होता है and 1 Weber is equal to SI unit of magnetic flux is 1 Weber and 1 Weber is equal to 1 Tesla into area. 1 Tesla into area. टेस्ला किसका यूनिट होता है बेटे मैग्नेटिक फील्ड का और एरिया का यूनिट क्या होगा मीटर स्क्वायर. सो दिस इज द SI unit of magnetic flux, that is Weber. 1 Weber is equal to 1 Tesla into meter square. Next part we have magnetic flux density. What is magnetic flux density? क्या होता है बेटे? It is the magnetic flux density is giving the values of magnetic field and magnetic flux density is equal to the flux per unit area. Flux per unit area will give you the value of magnetic flux density.
अब फ्लक्स के यूनिट्स क्या आते बेटे, वेबर, नीचे क्या है, एरिया, तो वेबर ओवर एरिया स्क्वायर, वेबर ओवर एरिया, सॉरी ये बनेगा मीटर स्क्वायर। इसके क्या यूनिट्स होते हैं बेटे, एरिया के मीटर, मीटर स्क्वायर, यस। 1 वेबर मीटर स्क्वायर is the values of 1 Tesla, and dimension formula of Tesla is a dimension formula of 1 Tesla or magnetic field is meter length square and time inverse value. This is the magnetic flux density dimensions formula. So let's start next part, that is Faraday's laws. So our next topic is electromagnetic inductions. What is electromagnetic induction? So let's start now. But electromagnetic induction is defined as defined as when there is a relative motion, when there is a relative motion between magnet and the coil. Magnet और coil में जब तक motions होगा, then it will produce small induced current in a circuit. Okay, so let's understand what is the Faraday's laws or electromagnetic inductions. Let's see. If you have a magnet and a coil, magnet and a coil, if there is a, whenever magnet is bring very close to the coil, then what happened, magnetic field lines from the north pole will pass through this one coil. तो ठीक है, तो इस कॉइल के जो सरफेस है इसके नॉर्मली क्या आएगा जी, फ्लक्स लाइन इसकी जाएंगे, तो फ्लक्स विल प्रोड्यूस इन दिस कॉइल. सो बेटे इफ देयर इज अ रिलेटिव मोशन, अगर इसका फ्लक्स चेंजेस होगा, मोशन में होगा, ये मैग्नेट और ये कॉइल दोनों में से कोई ना कोई चेंजेस होना चाहिए, दोनों में से कोई एक मोशन में होना चाहिए, और मे बी दोनों मोशन में होने चाहिए, बट दोनों रेस्ट पे नहीं होने चाहिए. ओके, if this coil is at rest and this magnet is also at rest, रेस्ट पे है तो वेलोसिटी इसका कितना बन गया होगा, वेलोसिटी हो गया 0. if there is 0 then there is no changes in the flux, if there is no changes in the flux there is no induced current. ओके, तो induced current इसमें कितना आ जाएगा, 0. no any type of current, induced current produced in the coil. तो coil में there is no current. ओके, तो करंट कब तक होगा, जब तक होगा मोशन किसका, बिटवीन मैग्नेट एंड द कॉइल. मैग्नेट और कॉइल में जब तक मोशन होगा तब तक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, और जब इसका मोशन नहीं होगा देन इंड्यूस करंट इज 0. इफ वेलोसिटी इज 0, इंड्यूस करंट इज आल्सो 0. एंड सेकंड केस, व्हेन दिस मैग्नेट इज इन मोशन, ठीक है, देन देयर इज वेलोसिटी, मैग्नेट इज मूविंग, magnet is moving along this direction. If the magnet is moving, it means that flux value change. तो पहले मैग्नेटिक फील्ड की 2 लाइंस क्रॉस हुई थी, फिर 3 हुई, फिर 4 हुई. अब जितना ये इसके पास आएगा उतना फ्लक्स इसके अंदर क्रॉस करेगा. ओके, सो जितना फ्लक्स चेंजेस होगा उतना ज्यादा क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड जितना चेंजेस होगा उतना ही ज्यादा होगा इंड्यूस करंट विल प्रोड्यूस्ड. तो इंड्यूस करंट का वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल है, फ्लक्स के. जितना फ्लक्स इसमें चेंजेस होगा उतना ज्यादा इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा. ओके, सो दिस इज द experimental verifications of Faraday's first law, and we also call it as electromagnetic inductions. तो electromagnetic induction का अब इसमें अगर हम डेफिनेशन बनाए तो क्या बनेगा, induced current produced in a coil, induced current produced in a coil whenever there is a relative motion, when there is a relative motion between coil and a magnet. जब तक coil और magnet में relative motions होगा, induced current will produce in the circuit, and we call this is as a electromagnetic inductions. अब clear हुआ definition कि ये electromagnetic induction में क्या बताते हैं, without touching producing the values of induced current is called inductions, electromagnetic induction. इंडक्शन का मेथड का मीनिंग क्या होता है बेटे, विदाउट टचिंग. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, करंट इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक, दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ, रिलेशंस के साथ हमारे पास बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस. एंड when there is a relative motion between magnet and the coil, it will produce small induced current in the circuit. Okay, so this is the definition of electromagnetic induction. This part is clear?
Okay, so let's start next part that is also very important. We call it is Faraday first law and second law. What is the Faraday first law? Faraday first law said that induced current produced in a circuit, as long as there is a relative motion between the coil and magnet. जब तक इसमें Faraday first law कहता है जब तक इसमें motions होगा ना, relative motions, तब तक ही उसमें क्या आएगा, induced current. If there is no relative motion means there is a no value of current. Okay, so this is the first law of Faraday. Now let's start second law of Faraday. Second law में इसने बोला बेटे magnitude of induced EMF produced in a coil is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. तो कहता है magnitude कि जितना इसके अंदर इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, जितना फ्लक्स चेंजेस होगा. ठीक है, तो जितना ज्यादा इसमें करंट अगर की वैल्यू को अगर हम ज्यादा चाहते हैं तो उतना ही ज्यादा इसमें फ्लक्स की वैल्यू चेंज कर दो. उसका जो रिलेटिव मोशन है ना मैग्नेट का, तो उसकी वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा करंट पैदा होगा. सो वी हैव गिवन द रिलेशंस ऑफ, देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, वोल्टेज होगा जो हमें मिलेगी. ठीक है, ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई ओवर डी टी. माइनस डी फाई ओवर डी टी का मतलब कि फ्लक्स का वैल्यू जो हमें इंड्यूस करंट मिलता है उसका डायरेक्शन कैसा होता है, नेगेटिव. डायरेक्शन कैसा होगा बेटे, नेगेटिव. तो इसका होगा फ्लक्स चेंजेस ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम. जितना टाइम, देखिए अगर इफ द टाइम वैल्यू इज मैक्सिमम, करंट इज, ईएमएफ का वैल्यू कितना आएगा बेटे, मिनिमम. इफ टाइम ज्यादा लगेगा ईएमएफ कम होगा, टाइम कम होगा ईएमएफ की वैल्यू क्या आएगा, ज्यादा. सो दैट अगर इसका मोशन इसके कॉइल के साथ ज्यादा फास्ट होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा मैग्नीट्यूड वैल्यू किसका ज्यादा होगा, करंट का. ओके, सो दिस इज Faraday's second law, that is so EMF प्रोपोर्शनल किसके होता है बेटे, टाइम के. जितना ज्यादा टाइम होगा EMF उतना कम, और जितना टाइम कम होगा उतना इंड्यूस्ड EMF will produce maximum, so that there should be a large velocity. Okay, that is why that will produce maximum values of induced EMF. So this is called Faraday first and second law and electromagnetic induction. So let's start next topic now. So let's start next topic, that is Lenz law. Lenz law हमें क्या बताता है बेटे, Lenz law gave us the value of direction. तो ये बताता है कि जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स के कारण, दैट इज ऑलवेज ऑपोजिट डायरेक्शंस. तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, ऑपोजिट. किसके, टू द मैग्नेटिक फ्लक्स. तो उसकी डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होगी. ऑपोजिट के लिए हम साइन कैसा यूज करते हैं, नेगेटिव साइन. तो नेगेटिव साइन ये जो आया है, दिस नेगेटिव साइन इज बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इज ऑपोजिट टू द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स. ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या आएगा बेटे, डेफिनेशन आएगा द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड इन ए सर्किट इज ऑपोजिट टू द कॉज दैट प्रोड्यूस इट. कॉज क्या होगा, जो इसको प्रोड्यूस करता है, वही उसके ऑपोजिट डायरेक्शंस में इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा. ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण इंड्यूस्ड करंट होता है, और इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कैसी आएगी, नेगेटिव. और नेगेटिव के लिए साइन कैसा होगा, नेगेटिव. ठीक है, so this is by only representations. You can see here then there is magnet and the closed coil. अब इस coil के अंदर से क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी, और जितना मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस क्रॉस करेंगे उतना फ्लक्स चेंजेस होगा. इस फ्लक्स के चेंजेस होने से मैग्नेटिक फील्ड से यहाँ पे अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल यहाँ पे करंट बनेगा क्लॉकवाइज. बट यहाँ पे करंट किस तरफ बन रहा है बेटे, करंट बनेगा बेटे ऑपोजिट डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज जाना चाहिए, बट ये करंट बन रहा है क्लॉकवाइज. सो दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन, करंट इज प्रोड्यूसिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस. ऑपोजिट डायरेक्शन है, सो दिस इज, दैट इज व्हाई वी यूज नेगेटिव साइन. तो ये जो नेगेटिव साइन है, दिस इज बिकॉज ऑफ लेंज लॉ. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज लेंज लॉ एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. दिस इज आल्सो a question comes in generally 1 or 2 marks. Okay, does the Lenz rule या Lenz law obey the law of conservation of energy? Then our answer is yes. Lenz law obey the law of conservation of energy as magnetic flux changes into induced current. Magnetic flux changes into induced current, and induced current, that is why
energy is transferring from changes from one form into another. So there is no loss of energy. Energy changes from one form into another form. Magnetic flux into induced current. That is why there is no any violations of law of conservation of energy. So it obeys the law of conservation of energy. तो ये आपने अच्छे से बता देना है कि energy changes from one form into another. That is why the Lenz law is obey the law of conservation of energy. ठीक है, तो ये टॉपिक आपका हो गया बेटे, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास एक और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज मोशनल ईएमएफ ऑफ ए कंडक्टर. तो मोशनल ईएमएफ ऑफ ए कंडक्टर्स क्या होता है बेटे कि देखिए इसमें क्या आएगा, हमारे पास एक आएगा रेक्टेंगुलर कंडक्टर. रेक्टेंगुलर कंडक्टर PQRS. ठीक है, तो इसका एक पार्ट आएगा लेंथ और दूसरा आएगा ब्रेथ. लेंथ में हमने L ले लिया, ब्रेथ में हमने X ले लिया. ठीक है, अब ये जो क्रॉस है, दिस इज द रिप्रेजेंट्स द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर. करंट का डायरेक्शन है अलोंग दिस डायरेक्शन, करंट इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है. ठीक है, तो अगर ये जो इसका एरिया है कंडक्टर्स का P एंड Q, अगर मैं इसको चेंज करूं विद स्मॉल वेलोसिटी V के साथ, तो बेटे क्या है, ये सारा पार्ट फिक्स्ड है और मूवेबल लेंथ कौन सी है, P और Q. P Q जो है मूवेबल है, मैं इसको यहाँ से पीछे भी कर सकता हूँ और आगे भी कर सकता हूँ. ठीक है, सपोज अगर ये यहाँ पर है, मैंने इसको फॉरवर्ड किया तो इसका एरिया इंक्रीज हो जाएगा. अगर एरिया इंक्रीज होगा तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी चेंजेस होगी. तो अगर फ्लक्स चेंजेस होगा, फ्लक्स अगर चेंजेस होगा तो इंड्यूस करंट भी प्रोड्यूस होगा. तो हम यहाँ पे यही करते हैं बेटे, तो इसका एरिया को कभी इंक्रीज करते हैं कभी डिक्रीज करेंगे. तो इफ द एरिया वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज, तो चेंजिंग एरिया विल प्रोड्यूस इंड्यूस्ड ईएमएफ. क्योंकि एरिया को चेंज करने से क्या चेंजेस होगा, फ्लक्स का वैल्यू. और जब भी फ्लक्स चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड करंट. तो इसी को बेटे हम स्टडी करेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंड्यूस्ड ईएमएफ, आप इंड्यूस्ड ईएमएफ लिख दो चाहे इंड्यूस्ड करंट लिख दो, दोनों सेम ही बात है. ठीक है बेटे, सो इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट विल प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग द एरिया, by changing the area of a coil by small velocity v in the uniform magnetic field. तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब भी आप एरिया चेंजेस करोगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ. ठीक है, तो इसमें और थ्योरी पार्ट हम करेंगे. कंसीडर ए रेक्टेंगुलर कंडक्टर ऑफ लेंथ ऑफ एरिया. एरिया क्या आएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, L इनटू x. इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन मैग्नेटिक फ्लक्स इज, तो फ्लक्स का डेफिनेशन क्या होता था बेटे, फ्लक्स का डेफिनेशन होता था phi is equal to मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया. एरिया की जगह हमने क्या लिख लिया, L इनटू x. तो we will now we have to find EMF. EMF का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, माइनस डी फाई ओवर डी टी. तो phi का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करके B और L, देखो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी सेम है, लेंथ भी सेम है, तो चेंज हमने क्या किया था यहाँ पे, डेल्टा x. तो यहाँ पे था dx, तो dx अपॉन dt वेलोसिटी. ठीक है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें क्या देता है बेटे, वेलोसिटी. तो ये आ गया हमारे पास BLV. सो नेगेटिव साइन ओनली फॉर द इंडिकेशन ऑफ डायरेक्शंस ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ. और इंड्यूस्ड ईएमएफ को पता ही है कि वो नेगेटिव डायरेक्शंस में होता है बाय यूजिंग ऑफ लेंज लॉ, बट वी हैव वो फॉर्मूला E is equal to BLV. So this is the mathematical expression for motional EMF produced in a conductors. Okay, bete? So this is our today's topic. So next topic we will study on next day. Thank you.